Greetings everyone. So today we are going to study about the chapter tissues. This is lesson 7 CBSE class 9th. Alright. Now before I begin the chapter tissues, it is very important to know that what is cell. So in the previous chapter you have studied about cell. So how will we define tissues, right? You know about the cell, so we can say that those cells which perform similar function and they have a similar structure and they have a same origin are together, they are known as tissues. So a group of cells similar in structure and function and common in origin are known as tissues. Group of tissues doing one function is known as organ. Group of organs doing one function together is known as organ system, and many organ systems together they are known as an individual. Okay. Best example is human beings, that we have many organ systems like respiratory system, muscular system, nervous system, and together they form us. Many organ systems together form an individual, which is the highest evolved machine, highly sophisticated machine. So let us come back to tissues, and you have the definition now. Now if we see the world of living things, we can divide it into two categories, plants and animals, right? Plants mostly live a sedentary life. Q, because they don't have to go for search of food. They can prepare their own food. So, and the food that they prepare is in the simplest form, right? So the food is also in simplest form. They don't need a digestive system. उनके excretory products भी इतने harmful नहीं होते हैं कि उनके लिए एक अलग से excretory system बनाया जाए, है ना? So plants have a very simple body organization if we compare it with the most of the animals. I'm not saying amoeba, because amoeba is a unicellular organism and hence there is no tissue. All the life activities are done inside a single cell. Okay, so categorically we can categorize tissues into two main parts. We can say it plant tissues and animal tissues. Okay, now let us talk about plants in detail. Yeah, I told you plants have a very simple body organization. Perfectly all right मैम, इतना समझ में आ गया. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आपने देखा होगा plants में, like suppose if it is a mango tree, it definitely will have a definite height, है ना? हाइब्रिड बना के छोटे मैंगो ट्री में ही श्रब के साइज में भी आजकल फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग हो जाती है, तो दैट इज अनदर थिंग. But normally mango tree, we know it's a huge one, and we know if it is a marigold plant it will be a herb. You know it, if it is a mint it will be a creeper or a runner, है ना? So we know it that a plant has a definite height, but plants always keep on getting new leaves. ऐसा नहीं है कि उनकी 10 पत्तियां हो गई और उसके बाद नहीं होंगी या 100 हो गई. there is no definite number. तो इसका मतलब है कि एक तो प्लांट्स में डेफिनेट हैं, जो कि भाई प्लांट्स आपने देखे भी होंगे, उनके स्टेम परमानेंट होते जाते हैं, रूट्स लंबी होती जाती हैं, परमानेंट होती हैं, है ना? और एक हिस्सा प्लांट का ऐसा, मतलब एक ऐसा भी फीचर है जहाँ पर कि न्यू लीव्स, न्यू ब्रांचेस, न्यू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे कीप ऑन कमिंग. तो इसका ये मतलब है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ tissues in plants, है ना? तो we will categorize it into two types, and those two types are, there is meristematic and there is permanent tissue. Okay,
सो वील बिगिन विद द मेरिस्टेमेटिक. मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, तभी आपको नए नए फ्लावर्स दिखते रहते हैं, तभी आपको न्यू लीव्स दिखती हैं. आफ्टर एवरी ऑटम देर आर न्यू लीव्स, है ना. तो इसलिए वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. एंड देन दी अदर सेट्स जो कि डिवाइड हो चुके हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर ली है, अब वो एक ही काम कर रहे हैं. वील कॉल देम परमानेंट टिश्यूज, राइट. सो टिश्यूज, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू. प्लांट टिश्यू में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. I would like to categorize permanent tissue also. They are also of two types, right? Simple permanent tissue and complex permanent tissue. ये क्या है मैम, आपने इसमें भी डिवीजन कर दिया. ऑफ कोर्स करेंगे, है ना. परमानेंट टिश्यू सिंपल, जो कि एक ही तरीके के सेल्स हैं उसमें, है ना. तो they are simple permanent tissue, and complex, a group of cells, different group of cells doing one function, that makes a complex permanent tissue. See children, it is very easy if you learn through the flow chart, है ना. So flow chart से आपको क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर एट अ ग्लैंस मिल जाएगा, ठीक है. तो फ्लो चार्ट आप यहाँ से शुरू कर सकते हो. देन वील कंटिन्यू एंड आई विल कीप ऑन टेलिंग यू दैट देयर आर टिश्यूज टू टाइप्स, एंड प्लांट टिश्यूज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. एंड परमानेंट टिश्यूज आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, सो लेट अस go in detail. We'll begin with the meristematic tissue. And meristematic tissue भी हम उसको तीन भाग में कर सकते हैं. Suppose this is my meristematic tissue. I can divide it into three parts depending upon their location in the plant. ठीक है, लोकेशन एंड फंक्शन. तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बनने शुरू हो गए. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज आपका एपिकल मेरिस्टेम. द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग दैट एपिकल है तो एपेक्सिस पे होगा. वील स्टडी इन डिटेल. देन अनदर वन इज कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम, एंड लास्टली वी हैव द इंटरकैलरी Lastly, we have the intercalary meristem. ठीक है, आइए इनकी हम लोकेशन पढ़ भी लें. सपोज दिस इज माई शूट टिप. एक ब्रांच है, उसकी हमने एक शूट है, उसकी टिप ली है. और आपको भी पता है कि अगर स्टेम है तो उस पर नोड्स होंगे ही. व्हाट आर दी नोड्स? नोड्स आर दी प्लेसेस फ्रॉम वेयर द न्यू leaves or branches arise. ठीक है, तो let us study about their location. Apical meristem, the name itself is suggesting the meristem which is responsible for the growth of the tip. अब टिप हमारी शूट टिप ही नहीं होती है, टिप हमारी रूट टिप भी होती है ना. तो शूट एंड रूट टिप यहाँ पे मिलेगा हमको एपिकल मेरिस्टेम. दूसरी लोकेशन हमने आपकी लगा दी, आपकी लैटरल मेरिस्टेम. ये होता है आपको साइड्स में मिलेगा, है ना. आपने देखा होगा कि आप अगर नीम का भी एक पौधा लगाते हो, या मैंगो लगाते हो, या कोई भी ट्री लगाते हो, या श्रब भी लगाते हो, इनिशियली बहुत पतला सा स्टेम होता है, बट ओवर द इयर्स इट कीप्स ऑन इवन इंक्रीजिंग इट्स गर्थ. इसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है ना. तो ये लैटरली ग्रो करता है. ये होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम, जो कि लैटरल ग्रोथ करता है. और वी से दैट इट ग्रोज इनटू द गर्थ. उसकी जो गर्थ होती है
मोटापा होता है, चौड़ाई होती है। सो ये काम कौन करता है? लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है। अब आपने देखा नोड्स, हमेशा नोड्स के पास से ही ब्रांचेस एंड लीव्स क्यों पैदा होते हैं, क्यों ओरिजिनेट होते हैं? इसका रीजन है कि वहां पर हमको मिलता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। व्हाट डू वी गेट देयर? वी गेट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Okay, we are getting intercalary meristem at the near the nodes, which actually give rises to the new leaves or branches. Now children, these are the meristematic tissues for you, right? So you can note, you can do this diagram. There is an activity given into your book. You can perform that activity at home also. You take 2 onion with some roots and keep them into glass and note down the length of the roots. ठीक है? Let them grow for 4-5 days. After that, in one of the onion, you cut the tips. Okay? So when you cut the tip, leave it again aside for 4-5 days and again you note down the length of the roots. आपको क्या दिखेगा कि जिस अनियन में हमने रूट टिप्स काट दी थी वहां पर ग्रोथ अब नहीं है। रीजन बीइंग, वहां का हमने एपिकल मेरिस्टेम काट दिया था, क्योंकि ये टिप्स पे होता है, चाहे वो शूट टिप हो चाहे वो रूट टिप हो, है ना, इसलिए देयर वाज नो ग्रोथ इन इट। सो चिल्ड्रन, दीज काइंड ऑफ सिचुएशनल क्वेश्चंस कैन कम फॉर यू ड्यूरिंग द एग्जाम और फॉर इन द एग्जाम्स। ओके, सो सिचुएशनल क्वेश्चन आपको इस तरह से दिए जा सकते हैं कि अगर आपने किसी प्लांट का ये हिस्सा काट दिया, will it grow in the girth? No, it won't, because आपने इसकी lateral meristem काट दी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको गिव रीजन में भी आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। ओके, सो नोट इट डाउन and see the pictures, and then I'll continue with the simple permanent tissues. Alright children, so after the meristematic tissue, we'll move to the permanent tissue, and that too we'll go for the simple permanent tissue made up of one type of cells. So we can divide them basically into 3 categories: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. It's very easy to learn the spelling if you break the spelling and then you learn. Otherwise आप pronunciation भी गलत करते हो और then you write the wrong spelling. For technical words, if you write the wrong spelling, you lose marks. Okay. So let us see parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. ठीक है. Let's come. अच्छा, why I have written it like this? मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके के questions बन सकते हैं ना. Differentiate between these two. Differentiate between these two. Differentiate between these two, 3. है ना? All the 3. Then it can come as differentiate on the basis of the cell wall. ठीक है? Differentiate on the basis of all the features. है ना? तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है उस, या फिर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, सो लेट अस मूव parenchyma, thin walled cells. There is lot of intercellular spaces. See, बहुत सारी यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस है, सेल्स के बीच में जगह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि सेल वॉल थिन है एंड देर आर लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। अगर हम लोग कॉलेनकाइमा को देखेंगे तो स्पेसेस तो हैं बट इनके यहाँ मार्जिनल थिकनिंग है, मार्जिन्स पे, कॉर्नर्स पे थिकनिंग है। इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं लेकिन कॉर्नर्स जो हैं वो थिकन्ड है, तो ये इनकी कॉर्नर्स थिकन्ड हैं एंड सो देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द सेल। जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो
थोड़ी थोड़ी सी है, ओनली द कॉर्नर्स आर थिकन, ठीक है। कॉर्नर तो नहीं होता, सेल यूजुअली राउंड होती है। मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, बट ठीक है। देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। देन वी हैव स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होती है, सेल वॉल पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा थिकेंड होती है, तो जो सेल की ल्यूमेन है, जो सेल की कैविटी है, वो बहुत ही पतली सी हो जाती है। और ये जो है ये थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन है। किस चीज़ का डिपॉजिट है यहाँ पर, लिग्निन का डिपॉजिट है, और उसकी वजह से ये लिग्निफाइड वॉल्स हैं। सो सेल वॉल इज हाईली थिकन and the lumen is very little. Okay, so this is sclerenchyma and there is no space between the cell. ये इनका पहला फीचर हो गया। अब आते हैं इनके फंक्शंस पे। फंक्शन क्या है, इसका काम है फूड स्टोरेज। बेसिकली इट स्टोर्स द फूड एंड फिल इन द स्पेस इन द प्लांट, ठीक है। आपको पैरेन्काइमा आगे भी दिखेगा जब हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यू विल फाइंड पैरेन्काइमा देयर ऑल्सो। सो बेसिक फंक्शन इनका पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इट इज फूड स्टोरेज। अदर फंक्शन इज दैट इट फिल्स इन द स्पेस, इट्स अ फिलर, ठीक है। बट कभी कभी ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है, अक्सर ही हो जाता है जब ये अपने अंदर क्लोरोप्लास्ट रख लेता है, ठीक है। व्हेन इट डेवलप्स, प्लांट सेल नॉर्मली कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो उस कंडीशन में इट स्टार्ट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस आल्सो, राइट, एंड देन वी कॉल इट क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल से क्लोरिन एंड वी कॉल इट क्लोरेन्काइमा बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। तो कहाँ मिलेगा ये हमको, we'll find it abundantly in the green leaves, of course, and in the green thin stems of the herbs, because wherever green color in a plant is there, that is because of the chlorophyll, and if chlorophyll is there, undoubtedly photosynthesis हो रही है। तो ये आपको फीचर्स, कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ताकि कोई गलती या एरर नहीं हो सके, ठीक है। सो दिस इज क्लोरेन्काइमा फॉर यू। ये इसका अडेप्टेशन है। एक अडेप्टेशन इसका और हो जाता है एरेन्काइमा। एरन, द नेम इज सजेस्टिंग, जिसमें एर है वो एरेन्काइमा है, ठीक है। तो एरेन्काइमा में क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है या आप किसी बोट राइड पे जा रहे हो तो वहाँ पे लाइफ बोट्स होती हैं, है ना, जो या आपके ट्यूब्स होते हैं, लाइफ ट्यूब्स, लाइफ सेविंग ट्यूब्स होते हैं, या जो लोग स्विमिंग करते हैं वो हाथ पर भी बांधते हैं, ट्यूब भी लेते हैं जिसके अंदर हवा भरी हुई होती है ना। छोटे बच्चों को पहना देते हैं ताकि वो डूबे नहीं। क्यों नहीं वो डूबेंगे, बिकॉज दोज हैंड बैंड्स एंड द ट्यूब हैज एयर, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर इट प्रोवाइड्स buoyancy, and when it is buoyant it cannot sink, it will keep on floating. So जब पैरेन्काइमा के अंदर एयर स्टोर हो जाती है and it becomes buoyant, then we call it एरेन्काइमा because it provides it buoyancy, ठीक है। तो buoyancy मिलती है हमें एरेन्काइमा से because पैरेन्काइमा ने अपने अंदर में एयर पॉकेट्स रख लिए हैं एंड नाउ इट कैन फ्लोट। तो वेयर विल वी फाइंड एरेन्काइमा, इन द एक्वाटिक प्लांट्स। दिस इज क्लियर। वील फाइंड एरेन्काइमा कहाँ हमें मिलेगा, वील फाइंड इट इन द एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया। तो ये दोनों इसके पैरेन्काइमा के स्पेशल फीचर्स हैं। लेट अस कम टू द कोलेन्काइमा। मेन फंक्शन इसका क्या है, एक तो ऑफ कोर्स कॉर्नर्ड थिकनिंग है, तो उसकी वजह से होता क्या है, सेल्स जो होती हैं इसकी थोड़ी सी इलोंगेटेड सी होती हैं, ठीक है। और इलोंगेटेड होने का इसका रीज़न क्या होता है आपको मैं बताऊं कि आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का पौधा, या अगर ये हमारी स्टेम है और यहाँ से लीफ लगी है, इट इज़ अटैच्ड थ्रू इट्स स्टॉक, है ना। ये लीफ है, स्टेम से लगी हुई है, और किस चीज से लगी हुई है, इट इज अटैच्ड थ्रू द लीफ स्टॉक, ठीक है। सो लीफ स्टॉक
जो होता है आपने देखा होगा, ज़्यादा फोर्स मत लगाइए, लेकिन लीफ हिल सकती है, आप उसको ऐसे ऐसे कर सकते हो, वो टूटेगी नहीं। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आ गई, है ना। कहाँ से आई ये फ्लेक्सिबिलिटी? ये आई फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा से। तो क्या एक फीचर है, ये फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज़ से आई है? फ्लेक्सिबिलिटी आई है कॉलेनकाइमा से। सो एक मेन फंक्शन कॉलेनकाइमा का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्स थोड़ी सी इलोंगेट होती हैं। आपने देखा होगा यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है वो, उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, आंधी या तेज हवा आती है तो वो बहुत ज़्यादा बेंड कर जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो पेड़ बिल्कुल स्ट्रिक्ट इरेक्ट खड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत तेज आंधी आती है, बिकॉज दे कुड नॉट बेंड, दे अपरूट, दे ब्रेक, है ना। तो लीव्स में, ब्रांचेस में आपने देखा होगा वो हिलते रहते हैं तेज हवा में, इतनी जल्दी नहीं टूटते। रीजन इज कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हमें उनको देता है कॉलेनकाइमा। ठीक है, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। स्क्लेरेनकाइमा लिग्निफाइड वॉल्स हैं, थिक वॉल्स हैं। लिग्निन का अगर डिपॉजिट इतना ज़्यादा है और ल्यूमेन बहुत कम है तो ये एक्टिव तो अब है नहीं। सेल वॉल से जब कुछ अंदर आ नहीं रहा है, जा नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो लिग्निफाइड वॉल हैं। तो इनका बेसिक काम क्या होता है? दे प्रोवाइड टफनेस और रिजिडिटी। व्हाट डू दे प्रोवाइड? दे प्रोवाइड टफनेस और रिजिडिटी। मैम कहाँ पाया जाता है ये? बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, आप देखिए सीड कोट होता है ना, आपने देखा होगा बादाम का सीड कोट होता है, हार्ड होता है, इट प्रोटेक्ट्स द सीड, है ना। इसी तरह से वॉलनट होता है, वो भी एक हार्ड कवरिंग के अंदर होता है, उसके अंदर भी सीड है वॉलनट का, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और सबसे कॉमन आपने देखा होगा कोकोनट, है ना। कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं उसके अंदर कोकोनट सीड है, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो ये स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है कि इट प्रोवाइड्स टफनेस, रिजिडिटी, हार्डनेस। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा कि विच सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फाउंड इन द कोकोनट? स्क्लेरेनकाइमा। विच टिश्यू इज फाउंड इन द सीड कोट ऑफ आमंड्स? स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो इट प्रोवाइड्स टफनेस एंड रिजिडिटी। नेक्स्ट वी हैव लास्ट फंक्शन। ऑफ कोर्स ये आपको पहले ही समझ में आ जाना चाहिए था। सेल वॉल फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, क्लोरेनकाइमा है, फूड स्टोरेज कर रहे हैं, दे आर फिलिंग द स्पेस इन द प्लांट। एरेनकाइमा भी बन जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर लिविंग सेल्स। ठीक है, पैरेनकाइमा इज लिविंग। कॉलेनकाइमा क्योंकि ओनली कॉर्नर्स पे डिपॉजिट है ना, दे आर ऑल एंड दे आर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। डेफिनेटली ये डेड सेल्स तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, डेड सेल्स तो हार्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये होती है आपकी लिविंग, बट ये थिकली लिग्निफाइड सेल वॉल है। जब सेल वॉल और ल्यूमेन भी अंदर इतनी छोटी उसकी ल्यूमेन सेल कैविटी हो गई है, मतलब कि इट इज अ डेड सेल ना। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा इज डेड सेल। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन। क्विकली यू पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट आउट द डिफरेंस। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक पढ़ा सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यूज। Now we are going to study about the complex permanent plant tissues. They are of two types, xylem and phloem, right? So of course when we have a circulatory system, है ना, to conduct all the things in the body, circulated from one place to another. प्लांट्स ऑल्सो, इनके पास बेसिक सिस्टम तो इतना चाहिए ना, बेचारे हमारे लिए खाना भी बना रहे हैं, एक जगह खड़े भी रहते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात भी सारा वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सो दे नीड समथिंग, एंड व्हाट डू दे नीड? दे नीड द सर्कुलेटरी सिस्टम। In plants, the circulation of food and water, only two things, is done by xylem and phloem.
and together if we cut the cross section we will see that this is a TS. तो एक सर्कल में ऐसे बंडल्स अरेंज्ड हैं और इन बंडल्स में ही हमारे ये दोनों जो टिश्यूज हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज हम इनको बोलते हैं, या हम इनको वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं बिकॉज दे सर्कुलेट द थिंग्स. ओके, सो ये वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं दे कॉल इट नाउ दे आर बंडल्स ऑफ इट, सो वी कॉल इट वैस्कुलर बंडल. वैस्कुलर बंडल किस चीज का बना होता है? इट कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो अगर हम एक टीएस देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, एक स्टेम है, इसको हम बीच से ऐसे एक स्लाइस लेंगे इसकी, तो वी विल हैव अ पिक्चर लाइक दिस. इसमें एक सर्कुलर फॉर्म में वी विल हैव द टिश्यूज. ओके, नाउ वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर बंडल, अगर हम एक वैस्कुलर बंडल को एनलार्ज करेंगे तो टुवर्ड्स द आउटर साइड वी विल हैव द फ्लोएम and towards the inner side center of the stem we will have the xylem. ठीक है, and this is one vascular bundle. ऐसे एक पेरीफेरी में ये स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में लगे होते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम उसको स्टेम में अगर हम देखेंगे तो सेंटर में आपका क्या जा रहा है? सेंटर में आपका जा रहा है जाइलम. ठीक है, सेंटर इज जाइलम और उसके चारों ओर क्या है? फ्लोएम. ठीक है, तो इसके लिए बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी करा. हाउ टू प्रूफ इट? साइंस का मतलब ही है कि वाई, व्हेन, हाउ, है ना. तो कैसा आपने बोला कि जी फ्लोएम बाहर की ओर है, जाइलम सेंटर में. ये दोनों ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं. एक पाइप आपका वाटर और मिनरल कंडक्ट कर रहा है, दूसरा पाइप आपका फूड कंडक्ट कर रहा है ना. कैसे हम ये जानेंगे? साइंस में बड़ा इजी तरीका है, स्पेशली बायोलॉजी में. इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, कनेक्ट इट टू समथिंग so that you never forget, है ना. तो जाइलम जो है, ज से जाइलम, ज से जल. तो जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द टॉप ऑफ द लीफ टू द होल प्लांट. ठीक है, फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ऐसे आप याद कर लोगे. तो फ्लोएम कंडक्ट्स फूड मेड बाय द लीव्स by the process of photosynthesis. एंड लीव्स क्या होती हैं ट्री में? ऊपर भी फ्लावर फूड है, उसको भी देना है, नीचे भी देना है. ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आएगा, अभी हम लोग कंडक्ट करेंगे. बाय द वे, फ्लोएम कंडक्ट्स फूड whereas xylem conducts water. ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया आपका ये, दैट वन कंडक्ट्स वाटर, द अदर वन कंडक्ट्स फूड. दूसरा, चलिए इनका कॉम्पोजिशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं तो दे आर मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ सेल्स टुगेदर. पहला है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकीड्स. फंक्शन इनका देख लेते हैं. पैरेन्काइमा, द नेम सजेस्ट दैट इट स्टोर्स द फूड एज वेल एज एक काम ये और करता है. ये जो पूरा अरेंजमेंट है, तो पानी तो नीचे से ऊपर वर्टिकल पाइप्स हैं जा रहा है ना. साइड वेज का भी ट्रांसफर आपका बुक में नहीं होगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. जो स्टेम में साइड वेज का ट्रांसफर है, पैरेन्काइमा स्टोर तो कर ही रहा है, साथ में साइड वेज वाटर एंड मिनरल्स का भी ट्रांसफर पैरेन्काइमा करता है. ये इसका एक फंक्शन है. वेसल एंड ट्रैकीड्स, दे आर ट्यूब्स. आप देखिए इनमें पिट्स बने हुए हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर होल्स, दीज आर पिट्स. तो ये पिट्स, ये these are pipes and through them the water and mineral is transported, है ना. एक ये भी हैं, इनका क्या काम है भाई? देखो, प्लांट्स का अपना कोई स्केलेटल सिस्टम तो है नहीं, है ना. तो नेचर ने बहुत ही ब्यूटिफुली अरेंज करी ये चीजें जो कि उसको सपोर्ट देंगी. क्या? वैक्यूल अंदर से दे रही है, थिक सेल वॉल बाहर से दे रही है, स्क्लीरेन्काइमा आ गए, या जो डेड सेल्स होती जा रही हैं, जो आप बार्क जिनको बोलते हो बड़े बड़े टी ट्रंक्स में, वो क्या है? वो तो बाहर होती जा रही हैं, वो डेड होती जा रही हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? जाइलम फाइबर्स. सो ये इनके फंक्शंस हो गए. पैरेन्काइमा, फूड स्टोरेज, साइडवेज ट्रांसपोर्ट, फाइबर सपोर्ट, वेसल एंड ट्रैकीड्स आर द पाइप्स which are
कंडक्टिंग द वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है. एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये भी होता है कि ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग. ठीक है. बाकी ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं डेड. यू नो इट. ओके. So xylem parenchyma is living. Fibers, vessels and tracheids, they are all dead cells. ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. वाई आई एम डूइंग इट कि ये डिफ्रेंशिएट करने को भी आ जाता है या अलग अलग आ जाएगा जी. आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए या आपके एमसीक्यूज तो बहुत सारे फॉर्म हो जा रहे हैं यहाँ पे ना. फंक्शन भी आ जा रहा है कि टेल द फंक्शन ऑफ दिस दिस दिस. Now let us come to the food conducting pipes, that is the phloem. Phloem भी 4 components होते हैं. Parenchyma, sieve tubes, companion cells and phloem fibers. बहुत इजी है. अगर आपको एक बार एक की मीनिंग समझ में आ जाए, वही उसका फंक्शन है, तो वो फंक्शन हर जगह एप्लीकेबल है ना. तो पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज, लीफ है, फ्लोएम है कंडक्ट कर रहा है, बहुत फूड बन रहा है. पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज. एंड लेट्स सी सीव ट्यूब्स. दीज आर दी बेसिकली ट्यूब्स जिनमें कि ये सीव प्लेट्स होती हैं, है ना. अगर आप देखिए तो मोटी मोटी सी आपकी मेन, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग द फूड. फूड बेसिकली ग्लूकोज होता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, तो बहुत आसानी से कंडक्ट हो जाता है. फिर जब उसकी स्टोरेज शुरू होती है देन इट स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. उसमें नाइट्रोजन हो जाता है, फिर वो प्रोटीन बन जाता है ना. तो इस तरीके से एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जो भी एब्जॉर्ब किया गया वो वाइटामिन मिनरल उस प्लांट में स्टोर हो गया. ठीक है. तो सीव ट्यूब्स जो हैं ये इनका देखिए पिट्स हैं. कंडक्शन ऑफ फूड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होता है, जैसा हम खाते हैं वैसा नहीं होता है. ठीक है. देन कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स साइड में हैं, उसको कंपनी दे रही हैं, सपोर्ट दे रही हैं, है ना. तो दे आर हेल्पिंग इन द कंडक्शन ऑफ फूड विच इज इन द लिक्विड फॉर्म. ग्लूकोज है डिजॉल्व है वाटर में. नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम फाइबर्स. सेम फंक्शन जो जाइलम फाइबर्स का था कि ये सपोर्ट देते हैं बेसिकली. भाई इतने बड़े बड़े पाइप्स हैं, है ना, नीचे से लेके इतना ऊंचा ऊंचा पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं ना. वी हैव सच टॉल ट्रीज. तो सपोर्ट जितनी लंबी ट्यूब होगी उतना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा ना. तो ये हो गया आपका काम करते हैं फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है. ये इनका फंक्शन हो गया. जो जाइलम में होता है 3 डेड 1 लिविंग सेल, यहाँ पे एकदम ऑपोजिट होता है. पैरेन्काइमा आपको पता ही है लिविंग है. इवन सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स भी लिविंग होते हैं. अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सीव ट्यूब्स और ये भी लिविंग होते हैं. दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ठीक है. फाइबर्स यहाँ पर भी डेड थे, फाइबर्स यहाँ पर भी डेड है. ओके. सो ये एक और इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया. लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर ये ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं एंड ऑल, ये ऊपर भी जा रहा है, यहाँ पर भी टिप है, फ्लावर्स लगे हैं, है ना. फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है, फूड बन रहा है, और नीचे रूट्स हैं जहाँ से पानी और मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे आपका ग्लूकोज है, फोटोसिंथेसिस हो रही है. ठीक है. पानी कहाँ से एक ही डायरेक्शन में जाएगा, है ना. पानी सिर्फ नीचे से ऊपर यूनी डायरेक्शनल है. वाटर का कंडक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, यूनी डायरेक्शनल है. यूनी मीन्स 1. यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा. ऑन दी अदर हैंड आप देखिए लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस कर रही हैं. ऊपर में भी यंग एंड डेवलपिंग एपेक्स पे लीव्स होती हैं, तो फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है ना, ब्रांचेस होती हैं. तो फूड का ट्रांसलोकेशन जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन पानी का होता है, ट्रांसलोकेशन फूड का होता है. दीज आर द 2 वर्ड्स विच यू शुड नो, है ना. फूड इज ऑलवेज ट्रांसलोकेटेड, water is always transported.
So transportation is taking place in one direction from roots to the top of the tree. On the other hand, translocation or transport of food is taking place in both the directional. It is bidirectional. ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आ गए. वाटर, फूड, इनका कंपोनेंट्स, इनके कंपोनेंट्स, उनका फंक्शन, 3 लिविंग 1 डेड, 3 डेड 1 लिविंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. ऊपर नीचे हर तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सॉरी ट्रांसलोकेशन हो रहा है. ठीक है. सो ये आपको डिफ्रेंसिएशन भी आ सकता है. आपको इंडिविजुअली डिफाइन दी और एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम एंड देयर फंक्शन, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम एंड देयर फंक्शन. और एमसीक्यू तो आपको नॉलेज है तो आप कोई भी कर लोगे. ठीक है ना. सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. आप वीडियो पॉज करिए, यू कैन नोट इट डाउन, और इन द कमेंट सेक्शन यू कैन आस्क अबाउट योर doubts. ठीक है. This is all about complex permanent tissue, and this lecture is all about plant tissues. All right. So happy learning. Keep learning. Any doubts, please ask me in the comment section. I would definitely explain it to you. Right? Note it down.